Hello everyone and welcome to Tathastu ICS. This is Trija Garg, your economy faculty. We studied about what is inflation. Today we will understand what are the reasons for inflation. Why does inflation normally happens? महंगाई क्यों आती है? This is what we will be studying today. So we will be talking about two things, and that is Keynesian school, okay, and we will be talking about monetarist. Okay, cool. These are two schools of economy. Okay, earlier this is 1970s and this is post 1970. 1970s, this is pre 1970. Okay, so normally the reason is the same normally for the inflation to happen, लेकिन सब अलग अलग तरीके से सोचते थे. प्री 1970s जो किनीशियन यानी कि जो हमारे आप कह सकते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स के जो थॉट्स के ऊपर जो बेस था वो थोड़ा अलग तरीके से सोचते थे कि वाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है. लेकिन जो मॉनेटरिस्ट है जिनको हम अब फॉलो करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग पे अब हम सोचते हैं कि क्यों हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है. ओके, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दीज टू लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इन्फ्लेशन नॉर्मली हैपन्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस. ओके, एंड बोथ ऑफ देम कंसिडर्ड द सेम. Okay, one is demand pull and one is cost push inflation. These are the two reasons because of which inflation happens in an economy, and there are certain factors which lead to this. इसको याद करने का तरीका क्या है? मान के चलिए this is the price. जब डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ रही है तो इट मीन्स डिमांड इज it is pulling the price above. Okay, and then we have cost. So when we say the cost is pushing the price, then this happens. Okay, so we have two types of inflation because of which inflation normally happens in an economy, and that is demand pull inflation and cost push inflation. So first of all we will discuss Keynesian school. Okay, so he said, I will explain this with an example. Let's say there's only one supplier in an economy, okay, one supplier, and he has, let's say, only two chocolates. Okay, it could be your favorite dairy milk. Okay, let's say this is dairy milk chocolates. Okay, this is the supply, only two, and in a town, nearby town, there are two people living. Here demand will be equal to supply, so there is no problem. Okay, and he sells this chocolate at 10 rupees each. Now what happened was suddenly there was an influx of population. Okay, and number of people started to migrate to this town. Now what will happen? There will be a mismatch between supply and demand. The suppliers have only two chocolates. अब उनके पास सिर्फ दो ही चॉकलेट है इतने सारे लोगों को देने के लिए. अब उनको ये बात भी पता है कि मैं अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूंगा तो इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बढ़े हुए प्राइस पे मेरे से चॉकलेट्स खरीद लेंगे. So what he will do is instead of 10 rupees, he will raise the price to 20 rupees. So there will be two people who will be ready to buy dairy milk at 20 rupees. So here's the demand supply mismatch. Okay, because of which what is happening? The prices have increased. So this is known as demand pull inflation as per the Keynesian school. Clear? Now let us study cost push. Okay, कॉस्ट पुश में क्या होता है? अब ये चॉकलेट्स जो है इस शॉप पे कहाँ से आती हैं? एक फैक्ट्री से आती हैं ये चॉकलेट्स. अब ये जो फैक्ट्री बना रहा है फॉर सम रीज़न इसकी बनाने की कॉस्ट बढ़ गई, चॉकलेट्स बनाने की कॉस्ट बढ़ गई. इट मीन्स इस कॉस्ट के बढ़ने से हमारी प्राइस जो है वो ₹20 हो जाएगी अब. ठीक है, तो कॉस्ट के वजह से प्राइस पुश हो गई क्योंकि वो कॉस्ट जो हमारी सप्लायर्स को लग रही है दे विल, वो किसी पे तो बर्डन डालेंगे ना उसका. ऐसा तो है नहीं अपने लॉस में बेचेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग गुड्स और सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट, तो उनको भी प्रॉफिट सोचना है तो वो प्राइस ऊपर करके बेचेंगे. तो दिस विल बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एज पर द Keynesian स्कूल. अब इसमें एक और केस हो सकता है. एक और केस क्या होता है कि जब सिर्फ सप्लाई कम हो. ठीक है, सप्लाई कम है. सप्लाई कम कब हो सकती है? दो की जगह सिर्फ एक चॉकलेट्स है. दिस कैन हैपन व्हेन देयर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैसे राइज हो सकती है कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से नहीं है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन नहीं हो पा रहा है, तो सप्लाई प्रॉब्लम है. लेकिन डिमांड करने वाले तो दो ही लोग हैं, तो इसमें भी सप्लाई डिमांड मैच है ना. तो इसके वजह से क्या होगा? एक्चुअल में सप्लाई आपकी कम हुई है, डिमांड आपकी बढ़ी है, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. तो दिस इज नोन एज bottleneck inflation. Bottleneck
इन्फ्लेशन और यू कैन से इट एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, वो तब होता है जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअल में इन एन इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच द इन्फ्लेशन हैपन्स एंड द प्राइसेस राइज बिकॉज द सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू monetary school of economy. Now this is post 1970s. He also uses these two words only, that is demand pull inflation and cost push inflation. लेकिन उसका कहने का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कहता है डिमांड तब बढ़ेगी नॉर्मली जब लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो ही सेज व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस देन द डिमांड फॉर दैट गुड राइजेस। और परचेजिंग पावर कैसे राइज होगी, टैक्स कम हो गया यानी कि नाउ यू आर पेइंग लेस टैक्स, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आप इनकम बढ़ गई तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो आप डिमांड ज़्यादा करने लग जाओगे, जिसकी वजह से अगेन सप्लाई डिमांड गैप आएगा क्योंकि सप्लाई उतने लेवल से नहीं बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड इट विल बी द गुड्स विल बी सोल्ड एट हायर प्राइसेस। ठीक है, अब वो ये कहता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कोई तभी हो पाता है जब एक्चुअल में कंज्यूमर इज रेडी टू पे द हायर प्राइस। अगर अभी 10 रुपीज़ का है और प्राइस अगर 20 रुपीज़ का हो गया, आप कॉस्ट को बढ़ा के 20 रुपीज़ का कर रहे हो, तो वो तभी पॉसिबल है, वो तभी हो पाएगा जब कंज्यूमर उसको पे कर पाए। अगर कॉस्ट आपकी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यही फैक्ट्री है, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, अब 10 रुपीज़ की चॉकलेट उसको 20 रुपीज़ में बेचनी पड़ रही है, लेकिन कोई भी उसको चॉकलेट को खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या वो प्राइस रिटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इन द एंड क्या करेगा वो फैक्ट्री ओनर, उसको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कॉस्ट को कम कर पाए और उस प्राइस पे बेच पाए जहाँ पे कंज्यूमर जो है ही इज़ विलिंग टू बाय दैट गुड। ओके, तभी तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम आता है। तो अब इसमें मॉनेटरिस्ट बोलते हैं कि बेसिकली मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यही परचेजिंग पावर जब बढ़ती है तभी जो है हम प्राइस को हाई लेवल पे बेच सकते हैं। तो इन दी एंड वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सॉरी दिस वन, तो इन दी एंड वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं यही मेन रीज़न है, यही परचेजिंग पावर मेन रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, या फिर कॉस्ट अगर बढ़ के आप प्राइस लगा भी रहे हो तो वो प्राइस तभी सस्टेन कर पाएगी जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अभी के अगर रियलिटी में देखते हैं क्या होता है, अब इसी परचेजिंग पावर को गवर्नमेंट कम करने का ट्राई करती है। Even RBI tries to reduce this purchasing power, and this purchasing power is also known as the money supply. So RBI tries to reduce this money supply, how? By using repo rates, monetary policy tools, and contain the inflation within the inflation target. How does the government use this? How does the government help reduce the purchasing power? By taxing more, है ना, टैक्सेस बढ़ा दिए, या फिर MSP एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बढ़ा दिए, GST बढ़ा दिया, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, तो परचेजिंग पावर को तो टारगेट कर रहे हैं। तो अब व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन वी नो दैट बी इट कॉस्ट पुश, बी इट डिमांड पुल, एवरीथिंग मैटर्स अपॉन, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर। द परचेजिंग पावर हैज़ इंक्रीज्ड। व्हाट इज परचेजिंग पावर नॉर्मली? अगर 100 रुपये में आपकी 10 चीज़ें आ रही थी, अब 100 रुपये में आप 20 चीज़ें खरीद सकते हो, तो 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई, एंड दैट इज योर परचेजिंग पावर। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।